Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is what functioning of a state government. So state government कैसे काम करती है और इसके कितने parts होते हैं ये जानेंगे हम इस chapter से. Learning objective, the state legislature, the process of making laws, the state executive and people's participation in the state government. So overall government work at three level, local level, state level and national levels. The government at the state level is called the स्टेट लेवल. तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे, और जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट लेवल पे कहते हैं. दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू एन एंटायर स्टेट. द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल हैज 3 organs like legislative and executive and judiciary. The legislative make laws and executive implement these laws and judiciary interpret the laws. ठीक है, तो हर स्टेट, हर जो भी गवर्नमेंट का स्टेट होता है, गवर्नमेंट की जो लेवल होता है वहाँ पे 3 फॉर्म होते हैं उसके, और वो होते हैं लेजिस्लेटिव जो कि लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी जो नहीं मानते हैं लोग उनके उन लॉज को तो उनको करते हैं पनिशमेंट. द स्टेट लेजिस्लेचर. Every state of India has a legislature which consists of a governor and either 1 or 2 houses. तो हर स्टेट में है legislature जिसमें है एक गवर्नर और या 1 or 2 houses. At present, out of 28 states and 6 states namely Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Uttar Pradesh have bicameral legislator. तो यहाँ इन 6 स्टेट में है बिकामेरल लेजिस्लेचर, दैट इज दीज साइट्स हैव 2 हाउसेज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के हाउसेज है, विधान परिषद और विधान सभा. द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ओनली 1 हाउस, दैट इज दे हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है, देन वी हैव द हाउस इज called the legislative assembly, Vidhan Sabha. The executive power of the state is vested in the government. तो the house is legislative assembly, जो legislative assembly का house होता है विधान सभा. The executive power of the state is vested in the governor. तो यहाँ पे गवर्नर के हाथों में होती है पावर. The legislative state legislator first is legislative assembly विधान सभा, और यहाँ पे होते हैं members MLAs directly elected by the people and the state by secret ballot for the 5 years term. ठीक है, तो यहाँ पे MLAs बनाए जाते हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं, और सीक्रेट बैलेट में स्टेट भी इलेक्ट करता है. ठीक है, सीक्रेट बैलेट फॉर 5 years टर्म, तो ये 5 साल के लिए बनाए जाते हैं. देन वी हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर MLCs are elected by members of the legislative assembly for 6 years term. तो इसके 1/3 मेंबर MLAs यानी legislative assembly द्वारा बनाए जाते हैं 6 साल के लिए, and 1/3 of its member retire every 2 years. और इसके 1/3 मेंबर हर साल हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं. ठीक है, the legislative assembly विधान सभा. The legislative assembly is lower house of the legislature. तो ये है lower house composition. A member of the state legislative assembly is called MLA. तो इसको बोलते हैं MLA, member of legislative assembly. The total number of MLAs in the state legislative assembly cannot be more than 500 or less than 60. ठीक है, तो यहाँ पे जो total number of MLAs होते हैं ये state मोर देन 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 600 से कम नहीं हो सकते. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड गोवा आर एक्सेप्शन टू दिस हैव लेस देन 60 मेंबर. तो मिजोरम, सिक्किम और गोवा में 60 से कम मेंबर हैं. द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और इनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं. फॉर इलेक्शन the whole state is divided into constituencies and 1 candidate is elected from each constituency on the basis of universal adult franchise. तो पूरा स्टेट स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है और वहाँ से एक कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है. द कैंडिडेट आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी एंड दोज हु विन आर नोन एज MLAs. तो जो वहाँ पे जीतता है उस एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी अलग अलग पार्टी के मेंबर्स खड़े हुए थे उनमें से जो जीतता है वो होता है वहाँ का MLA. Political parties, national and regional, take part in these elections. However, independent candidates can also contest election to the state legislative assembly, and the MLAs may belong to different political parties. मतलब यहाँ पे political parties से भी आप जुड़े हो सकते हैं और आप कोई independently भी कोई candidate हो सकते हैं जो उस particular area के लिए MLA के लिए खड़ा हो. Then we have eligibility. To be an MLA, a person must be a citizen of India and must not be less than 25 years of age. यानी MLA होने के लिए आपको citizen of इंडिया होना जरूरी है और 25 साल का होना बहुत जरूरी है. ही मस्ट बी पोजेस सम अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन द बिहाफ
बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो उनकी पार्लियामेंट लॉ के अंडर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाए उतनी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। टर्म, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन 5 years, ये है टर्म है इसकी 5 साल। हाउ एवर ड्यू टू प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इट टर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑफ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। तो यहाँ पे इसकी टर्म को घटाया बढ़ा मतलब इमरजेंसी में घटाया बढ़ाया जा सकता है ओनली बाय द पार्लियामेंट। Then we have preceding officers. The legislative assembly has a speaker and a deputy speaker. यहाँ पे एक speaker होता है और एक deputy speaker होता है. The MLA elect them from among themselves. The speaker मतलब MLA ही मिलकर अपना एक speaker चुनकर वहाँ बिठाते हैं. The speaker presides over the meeting of the house, maintain laws and other within द हाउस एंड टेक्स वोट्स इन इशू। तो यहाँ पे स्पीकर प्रिसाइड करता है, कोई भी मीटिंग होती है हाउस की वो प्रिसाइड करते हैं, और यहाँ पे कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी ऑर्डर पास कराना है तो उसके लिए यहाँ पे होती है वोटिंग। द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर जब नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर हाउस को रन करेगा। Then we have the legislative council, विधान परिषद। The legislative council does not exist in the most of the states, ये सभी states में नहीं है, and the legislative assembly of the state can create or abolish the legislative council by voting। तो ये assembly जो है council को by voting से क्या कर सकती है, abolish कर सकती है। Then the parliament passes the law to effect. The total number of members of legislative council cannot be less than 40 or more than 1/3 of MLAs in the respective state। तो यहाँ के जो members हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं हो सकते और या फिर 1/3 of the MLA से कम नहीं हो सकते हैं। Then we have composition. 1/3 of the member of legislative council are elected by MLAs of the state। तो काउंसिल के तो जो 1/3 मेंबर्स हैं वो एमएलए द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, एंड अनदर 1/3 आर इलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और बाकी 1/3 लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगे उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। 1/6 ऑफ मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6 मेंबर गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा, एंड फॉर अमंग डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट, ऑथर्स, social worker, etc. 1/12 of members are elected by teachers and rest 1/12 of members are elected by graduates of the states। ठीक है, तो उसमें से 1/6 जो है वो नॉमिनेट करेंगे सोशल वर्कर वगैरह, ऑथर्स, आर्टिस्ट 1/12 करेंगे टीचर्स, और रेस्ट 1/12 मेंबर्स इलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट। देन वी हैव एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर। तो काउंसिल का मेंबर होने के लिए आपको 30 साल एज होनी चाहिए और आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। टर्म, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट बॉडी है। इट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। तो ये डिसोल्यूशन का मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ इसके 1/3 जो मेंबर है वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। द टर्म ऑफ एवरी मेंबर इज 6 years। टोटल जो नंबर है वो 6 मतलब मेंबर इसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। Presiding officers, the legislative council elect a chairman and a deputy chairman from among themselves। तो ये एक chairman decide करते हैं, एक deputy chairman decide करते हैं। They preside over the meeting of houses, और ये house की meeting को presides करते हैं। The process of making laws, the state legislature makes laws on subject of the state list as given in the constitution। तो constitution में जो भी laws वगैरह दिए गए हैं वो इनको बनाते हैं, state बनाती हैं। This list includes subject like police, agriculture, fisheries, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, वाटर एक्सेट्रा। तो इन स्टेट का जो भी एरिया है वो इतना है कि एग्रीकल्चर, फिशरीज, लैंड फॉर्म, इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू, ये सब स्टेट का मैटर है। ठीक है, लॉज बनाने का। इट ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसके अलावा जो भी मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर लॉ बनाएगी स्टेट। हाउएवर द स्टेट लेजिस्लेचर पावर पर्टेनिंग टू द कॉन्करेंट लिस्ट इज लिमिटेड, पर इनकी पावर जो है वो लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड 47 सब्जेक्ट लाइक मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके टोटल 47 लिस्ट है जिस पे सब स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है रूल। A proposal to pass a new law or to change an existing one is called a bill। तो कोई भी नया लॉ बनाना is called, मतलब उसको पॉलिटिकल भाषा में बोलते हैं बिल।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स। तो दो तरह के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। अ बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, बट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट बिल होते हैं, लाइक कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी वो होते हैं ना, लिस्ट के जो भी स्टेट मैटर होते हैं, वो लोअर हाउस में हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में उसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होंगे। द बिल इज डिस्कस एंड डिबेट इन 3 स्टेजेस, इसको 3 स्टेज में डिस्कस और डिबेट किया जाएगा। देन इट इज़ पुट अप फॉर वोटिंग इन बोथ हाउसेज, फिर बोथ हाउसेज में, दोनों हाउसेज में होगी क्या, वोटिंग। If the majority of the member present in the houses vote for the bill and it is sent for other houses, there are also goes through a similar procedure। तो पहले मतलब मेजॉरिटी मिल जाएगी, मान लिया एक हाउस में उसको मेजॉरिटी मिल गई, ठीक है, फिर उसको दूसरे हाउस में भेज दिया और वहाँ पे मेजॉरिटी मिल गई तो बिल हो जाता है पास। When the bill is passed by the both houses of the state legislature, it is sent to the government for is assent to the bill and it becomes a law after the गवर्नर असेंट। ठीक है, तो जैसे ही दोनों हाउसेज में पास हो जाता है बिल तो वो गवर्नर के पास चला जाता है और वो उसको साइन करके बिल बना देते हैं, ठीक है, लॉ बना देते हैं। द गवर्नर में रिटर्न the bill to the legislature with suggestion, the legislature may or may not accept the suggestion। मतलब गवर्नर अपने कुछ सजेशंस के साथ उसको वापस देगा, लेकिन लेजिस्लेचर उसको माने या ना माने, एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर असेंट। ठीक है, और माने या एक्सेप्ट, मे और मे नॉट एक्सेप्ट सजेशन एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर, और फिर वापस उसको भेज देगा गवर्नर के पास। दिस टाइम द गवर्नर शेल नॉट विद होल्ड इज असेंस टू इट। ठीक है, और इस टाइम गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा, वो कोई भी अपना राय नहीं दे सकता। द स्टेट एग्जीक्यूटिव, the state legislature exercise control over the state executive, it can question the policies and working of executive। तो state legislator exercise करते हैं, control करते हैं पूरे state executives को। during some fixed hour the assembly of the council member can question the minister of the state executive and draw their attention to important issue। तो कुछ फिक्स आवर्स के अनुसार जो असेंबली ऑफ काउंसिल मेंबर जो हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से कर सकती है सवाल इम्पोर्टेंट इश्यूज पर। दे कैन ऑल्सो डिबेट एनी इशू डिस्कस वेयर द मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो डिबेट कर सकते हैं कि कहाँ मनी, पैसा वगैरह, जो भी किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो भी पैसा मिला था वो कहाँ गया वगैरह वगैरह। If the minister do not satisfy the legislator with their answer, the Vidhan Sabha may pass a vote for non-confidence against the council of minister, then the council of minister shall resign। ठीक है, तो अगर वो जो विधान मिनिस्टर्स हैं वो उससे लेजिस्लेचर के जवाब से बिल्कुल भी आंसर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ पे एक नॉन कॉन्फिडेंस लेटर पास हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू। तो स्टेट लेजिस्लेचर फिर वहाँ पे मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन डिस्कस करते हैं। देन द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स को करेंगे इलेक्ट। इन दिस वे वी फाइंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इन मोर पावरफुल एंड लेजिस्लेटिव council in the states। Then we have chief minister, a political party whose MLAs have won more than half of the number of assembly constituencies in a state can be said to be the majority। तो एक स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक स्टेट में जिसने मेजॉरिटी से हाफ से ज़्यादा मेजॉरिटी ले ली है तो वो बन जाती है मेजॉरिटी में। So after the election, the MLAs belonging the majority party elect their leader who become the chief minister on the governor invitation। तो इलेक्शन के बाद MLAs को बुलाया कि मेजॉरिटी पार्टी देखते हैं, ठीक है, और फिर उनमें से देखते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ऑन द गवर्नर इन्विटेशन पे चीफ मिनिस्टर को बनाया जाता है। इफ़ नो पार्टी विंस अ क्लियर मेजॉरिटी अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले, कुछ वोट इसको मिल गए, कुछ वोट इसको मिल गए, तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। In such case, a leader of largest coalition in single largest party is invited by the governor to form the state government। तो जो ज़्यादा जिस पार्टी ने वोट मिले होंगे ना, उसके एक किसी कैंडिडेट को गवर्नर बुलाता है और उसको सरकार बनाने के लिए बोलता है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बोलते हैं।
In such a case, the leader of the largest coalition in the single largest party is invited for the governor to form the state government. तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो लार्जर कोलिशन जो होता है, गठबंधन की सरकार, तो जो उसमें जो ज़्यादा मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वहाँ से किसी एक लीडर को बुलाया जाता है और उसको सरकार बनाने के लिए बोला जाता है. तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स द लीडर एज द चीफ मिनिस्टर के रूप में गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करते हैं. द गवर्नमेंट appoints the member of council of minister on the recommendation of the chief minister. Then the political party that form the government is called ruling party. जो सरकार बनाती है वो होती है ruling party. All the other member of the legislative assembly who do not become part of the ruling party are called opposition. और बाकी जो parties होती हैं जो ruling party में नहीं आई हैं वो होंगी opposition. Term. The normal term of office of the chief minister and the council of minister is 5 year. तो यानी council of minister की जो normal term होते हैं उसका जो time period होता है वो होता है 5 साल. Power and function of the chief minister. Following are some of the powers and function of chief minister. The chief minister is real head of the state. Chief minister होता है real head of the state and he or she supervise the work of the entire council of minister. और सभी minister क्या काम कर रहे हैं ये देखेंगे chief minister. Then we have he or she distribute portion to the ministries of the state council of ministers. Thus some MLAs have dual responsibility, one as the MLA and other as the minister. तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी पावर को, ठीक है, कि कौन से एमएलए की क्या पोजीशन रहेगी या क्या उसके काम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी. और कभी कभार ऐसा होता है कि कई एमएलए ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा पावर जिनके पास होती है. तो एक होती है एमएलए वाली और एक होती है मिनिस्टर वाली, ठीक है. ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कम्युनिकेट्स ऑल द डिसीजन मेड द गवर्नर, ठीक है. तो वो सारी मीटिंग वगैरह करेंगे और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा वो गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करेंगे. ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सक्सेस रही या फेलियर रही ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, चीफ मिनिस्टर. रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर इज ट्रीटेड एज द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया तो मतलब पूरे काउंसिल मिनिस्टर ने भी रिजाइन दे दिया. Council of Minister. There are 3 categories in the Council of Minister: Cabinet Minister, Minister of State and Deputy Ministers. तो 3 तरह के ministers होते हैं: Cabinet Minister, Minister of State and Deputy Minister. The Council of Minister is collectively responsible for the state legislative assembly. If a vote of no confidence is passed by the assembly against any minister, the entire ministry has to resign, ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए. और अगर कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस लेटर पास किया गया स्टेट किसी भी मिनिस्टर के द्वारा तो पूरे असेंबली को करना, पूरी जो मिनिस्ट्री है उसको करना पड़ेगा रिजाइन. पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फॉलोइंग आर द सम पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट. ईच डिपार्टमेंट इज इन द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ state. It is his or her responsibility to run the administration of the department smoothly. तो जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और उसको वो जिम्मेदारी अच्छे से चलानी होगी. The Council of Minister head the various department of the government like Education Department, Health Department, Public Works Department and Agriculture Department. तो Council of Minister करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड, ठीक है, और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स एंड एग्रीकल्चर. The next we have is it formulates and decide the policies of the state and implement them effectively. तो वो policies decide करेंगे state के लिए और उनको implement कराएंगे. It is the responsibility of the Council of Minister to maintain law and order, ensure सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन द स्टेट. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि सभी लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से जो हमारा स्टेट है उसमें पास ऑन हो एंड लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर्स ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स होंगे गवर्नर के एडवाइस पे, गवर्नर द्वारा बनाए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे. मेजॉरिटी इज द बिल आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मेजॉरिटी बिल्स जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एंड इट प्रिपेयर्स द budge and decide the financial policy and tax
स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो ये बजट बनाएंगे और दिखाएंगे कितना टैक्स पेमेंट है, कितना टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। देन वी हैव फैक्ट चेक। दो देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, येट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ लार्जर नंबर ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज, द स्टेट लुक टुवर्ड्स द सेंटर फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट को फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट से मनी अलाउड कराने पड़ते हैं। Then people participate in state government. The opposition party question and analyze the working of government during the question hours, and these opposition party MLA are also representative of the people who have elected them and send them to the legislative assembly. तो opposition party यहाँ पे उनसे सवाल करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन किस सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, और उनसे पूछेंगी सवाल। Besides electing MLAs, there are other ways also through which people can participate in the government. MLAs के अलावा कई तरह से लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। They can express their opinions for or against the government policies. तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के ओपिनियन के लिए ओपिनियन उनके अगेंस्ट और उनके पक्ष में दे सकते हैं। They can participate in the political discussion and criticize the working of government whenever required. तो वो पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। And they can hold press conference, rallies, dharna, strike and signature campaigns to voice their concern to the government. तो ये लोग धरना, रैली, स्ट्राइक्स कर सकते हैं। They can also express their views through writing in newspaper, magazines, etc. Thus, people are main strength in democracy. Through various means, they can force the government to review their laws and policies and work for the betterment of the society. तो लोग ही डेमोक्रेसी का आधार हैं और वो सरकार को कई तरीकों से उनको सप्रेस कर सकते हैं कि उनको लॉ में फिर से फेरबदल करने की ज़रूरत है। Then we have keywords. Constituency, a particular area from which all votes living there and choose their representative. Bill, a proposal to pass a new law or to change an existing one. Majority, a situation when more than half of the number in a group support a decision or an idea. Ruling party, the political party that forms in the government. Opposition, all the other member of the legislative assembly who do not become part of the ruling party. Press conference, a meeting at which somebody talks to a group of journalists in order to answer their question or to make an official statement. Then we have points to know. Local government, state government and central government are three levels of government in India. The power of the state government are divided among the legislature, the executive and the judiciary. Most states are uncamerable, but some are bicameral too. Then the main function of the state legislature is frame laws. A law is called a bill before it passed. Bill are two kind, ordinary bill and money bill. The governor is the nominal head of the state executive. The actual executive head is the chief minister of the state. The council of ministers assists the chief minister to discharge his or her duties. The state government collect revenue as taxes to provide facilities to the citizens. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.